welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Kashish and today we'll be discussing about how I created this look, what kind of products I'm using, if they're affordable or not, and yeah, we'll be also discussing, I'll be answering a few questions of yours which I saw on the comment section. So yeah, without further ado, let's begin. Okay, so now I'm back again and I have already put gulab jal. I use Dabur क्योंकि पैसे and it's good. ठीक है, it's nice. मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ, मतलब बचपन में मैंने मम्मी को देखा है यूज़ करते हुए and so I feel it's nice. It works good. और वैसे भी अभी मैं इतनी बड़ी होने की कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज़ होंगे ऑन माई स्किन, so but apart from that ठीक है. I have done toner. This is gulab jal. I'm moving forward with thick moisturizer. It is of 10 rupees क्योंकि I don't like moisturizer ज़्यादा and gel based moisturizer मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सा लूँ, तो I just invested in this क्योंकि मुझे कुछ तो चाहिए था and yeah. तो आई जस्ट यूज अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी क्योंकि ये काफ़ी थिक और यू कैन से कि ये बहुत ज़्यादा चिप चिप टाइप है, बट थोड़ी देर बाद इट विल वैनिश अवे. ग्लो आ गया भाई इतना ऑयल से तो बिकॉज इट्स अ बिट ऑयल बेस्ड, ड्राई स्किन के लिए इट विल डू वंडर्स. तो आई जस्ट यूज अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. मूविंग फॉरवर्ड आई विल गो विथ प्राइमर. I'm more of an inside girl क्योंकि और apart from that the product is really nice. I actually like it and मैं कैमरा पे देख के नहीं कर रही हूँ मेकअप क्योंकि मैंने फ़ोन को मिरर पे सेट कर रखा है. So I'm looking in the mirror. Please, I've used a basic amount of primer, like a pea size of the amount, and I actually like inside का primer क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने प्राइमर ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं है. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. इससे पहले आई हैड जस्ट ट्राइड नायका का प्राइमर, तो आई फाइंड दिस मच बेटर एंड इट्स लो कॉस्ट, सो I'm Sahab. Okay, now I'll be moving forward with the concealer part. Because as you guys can see, I have pigmentation and I have dark circles. Pigmentation I don't know कैसे आ गया. I think because of not eating healthy. क्योंकि I am much of a छोले भटूरे वाला girl. I don't use color corrector क्योंकि मुझे लगता है कि a good color of concealer will also do wonders for you. And please just remember my face क्योंकि मेकअप करने के बाद I will look different, है ना. I have actually recently invested in this मिनी ये वाला गंदा है इधर से क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसीलर लगा हुआ है, बट आई कैन पुट इट लाइक दिस, आई कैन गो लाइक दिस. इट्स एक्चुअली नाइस. हालांकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती इसे क्योंकि मुझे लगता है कि स्टिल ये ज़्यादा पैटिंग चाहिए होती है इसे एंड ये अच्छे से मिक्स भी नहीं करता. सो आई यूजुअली यूज़ माई फिंगर्स and see much more better. एंड जल्दी भी हो जाता है यार इससे rather than इससे करने का. हाँ, आफ्टर यूजिंग द फाउंडेशन इन दीज एरियाज आई कैन यूज दिस, बट फॉर दिस तो मुझे लगता है कि माई फिंगर्स है. थोड़ा सा
कम हुआ है. आई थिंक आई विल बी इन्वेस्टिंग इन कलर करेक्टर, मे बी ऑरेंज, क्योंकि मेरे पास बस पिगमेंटेशन का ही इशू है. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज गुड, लाइक ओके. much better than before. One more thing I used to do जो मैं अभी करना भूल गई, वापस कर, मतलब इसे भी कर लेते हैं, which is eyelid को थोड़ा सा लगाना concealer, because I'll be doing eye makeup. तो being a not a fair girl, मुझे लगता है कि concealer will help me कि darkness को मुझे, so that the eye makeup comes out boom, like pops. And I've seen a few questions. I know बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली है क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं कोई. And I've been recording content like those छोटे छोटे clips for the shorts, but I'm not getting time to edit everything क्योंकि अभी my very serious module was going on regarding the security and everything. So yeah, well, I've just cleared that. Yeah. So I'm happy, and yeah, I was free today, so I just thought why not do this. So a few questions lies with the scar part, ki I have scar and should I go for the interview or not. So I believe you should, क्योंकि I too have scars. You can see on my face, these are chickenpox scars, and here is one. Like ऐसे करके I have a few, but doing a good base and makeup वो ज़्यादा नहीं पता चलेगा. It should not be visible like कि ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे, like proper. जब तक वैसा नहीं है, your face till your neck, it's good to go. Talking about the hands, for Akasa, based on the uniform, you can go for like below elbow, because this is what matters, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म ऑलरेडी 3/4 रहेगी. सो इट विल नॉट काउंट इफ़ यू हैव एनीथिंग ऑन योर एल्बो और यहाँ और एनीवेयर. ठीक है, सो लाइक फेस टू नेक, देन आफ्टर नेक इट शुड बी आफ्टर यहाँ से यहाँ तक देखो. अपार्ट फ्रॉम दैट ये छोटे मोटे स्कार विच यू कैन कंसील हियर हियर और हियर, डू दैट एंड गो फॉर द इंटरव्यू. आई एम श्योर यू विल क्रैक इट. क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन द BMI एंड प्रॉपर स्कार चेक फॉर दीज एंड दीज एरियाज. ओके, दैट्स इट. सो यू गुड टू गो, डोंट पैनिक. हाँ, आई हैव डन माई बेस एवरीथिंग, स्टिल लेफ्ट विथ फाउंडेशन. समटाइम्स मैं फाउंडेशन से पहले कंसीलर लगाकर ये कर लेती हूँ, लाइक फिक्सर. आई नो सेटिंग्स पे यूज़ करना चाहिए, बट आई थिंक ये फिक्सर इज़ ऑल्सो नाइस, क्योंकि बेमतलब में मेरा बेस हिलेगा नहीं इधर उधर, एंड इट्स गुड. तो बट मैं फाउंडेशन भी लगा लेती हूँ, बिकॉज आई यूजुअली डू फाउंडेशन भी आफ्टर जॉइनिंग दिस. तो फॉर फाउंडेशन ऑल्सो आई यूज़ दिस इनसाइट का ही, and for concealer also I was using Insight. For primer also I was using Insight. मैंने आने से पहले ही लिया है, and I kind of liked it. मुझे ऐसा कुछ ख़राब नहीं लगा इसमें. I've seen most of the people saying कि to look good बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो बेस, which is actually true. मुझे लगता था कि नहीं ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इतने महंगे लेने की थोड़ी सोचते हैं. But after searching I found Insight to be really good. Even if I'm using, it's been more than 20 days now, you can say, and I like the product very much. मुझे कोई इशू नहीं है इससे, कोई एलर्जी नहीं, कुछ नहीं, no irritations, nothing. So I'm happy with the product. Apart from that, the range is also nice, like pretty affordable. क्योंकि देखो यार, मेकअप ले रहे हो तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ कुछ तो तुम्हें बहुत सस्ता मिल जाएगा. दैट विल नॉट हैपन, क्योंकि मैं वही लड़की हूँ जो सोचती है कि यार मैं कैसे 100 रुपीज़ में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ले लूँ, क्योंकि मनी इज़ अ कंसर्न फॉर मी.
but before coming I have to invest, and Insight is actually nice. I'm not sponsoring anything, by the way. I just like Insights, I'm telling you that. So if Insight feels good to you, go for it. ट्राई करना टेक्सचर, एंड कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार. थोड़ा सा बेशरम तो बनना पड़ता है. देखो मिक्सी कर दिया हाथ में. थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है कि ट्राई कर लो. एंड लाइक कि मैं बस ट्राई कर रही हूँ. आई विल बाई इट, बट फर्स्ट आई नीड टू सी कि कैसा है कैसा नहीं. इट्स एंड मैंने यूजुअली ऐसे छोटे मोटे स्टोर से लिया था. छोटे मोटे नहीं, मतलब कि आई मीन यूज़ से लिया था. वहाँ पर दे वर हैविंग दिस इनसाइट के प्रोडक्ट्स. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. तो आई ट्राइड एवरीथिंग. आई ट्राइड कंसीलर कि कंसील हो रहा नहीं. फाउंडेशन शी हैज़ रिकमेंडेड, आई ट्राइड दैट. मैंने कहा कि आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स. मैं यहीं पर हूँ, आई एम एक्सप्लोरिंग थिंग्स. आई नीड टू बाय. अगर मेरे को स्किन पे ठीक लगता है आई डेफिनेटली बाय इट. तो वहाँ जाके ऐसा कुछ बकवास मत करना कि नहीं लिया है, ऐसे बस घूम रहे हैं ज़बरदस्ती ट्राई करें, वो सब मत करना. सच में लेना है जाके सच में ट्राई करना. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द बेस. The brush, I am fully not aware about these brushes. It just कि my grooming class में बताया गया था कि this kind of brush is very nice for foundation. And one more similar type is this. If you can see the wand, it's diagonal, so it's good for blush. You can see pink क्योंकि मैं blush के लिए यूज़ कर रही हूँ, and it's more of an orange or स्किन कलर क्योंकि मैं सिर्फ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. एंड आई हैव रिसेंटली फाउंड आउट कि रादर दैन डूइंग ऐसे पेंट की तरह मैं ऐसे डैब करके करूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा. आई टेल यू ओके, दो साइड करती हूँ, बट आई फील कि मैं अगर ऐसे डैब कर रही हूँ ना तो मेरा फाउंडेशन काफ़ी जगह पे फैल भी रहा है आराम से. रादर दैन अगर मैं उसको ऐसे ऐसे करूँगी, अगर मैं इसको फाउंडेशन को भी ऐसे ऐसे करूँगी, देन ऑल्सो इट्स नाइस. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितना कवरेज है फाउंडेशन का, विच आई फील. ठीक है, इनसाइड का फेस पे क्योंकि ज़्यादा स्पॉटिंग्स नहीं है, आई एम यूजिंग अ प्राइमर टू, तो इट्स गुड. तो कहीं कहीं मैं ऐसे से कर रही हूँ, ये मत बोलना कि नहीं आप तो कर रहे हो. तो कहीं कहीं तो मैं करूँगी. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैंने रिसेंटली मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग एयरलाइन ही मैंने फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया है. उससे पहले मैं फाउंडेशन नहीं लगाती थी. मैं बस नॉर्मल ऐसे लिपस्टिक और कभी कंसीलर मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता था कंसीलर पहले कि कौन सा फाउंडेशन सही रहेगा, कौन सा कंसीलर विल लुक गुड. तो चलता रहता था मेरा ऐसे ही. बट नाउ आई हैव, अब करना ही है तो वाई नॉट. तो स्टार्टिंग के इनिशियल 2-3 दिन तो आई वॉज लॉस्ट कि अच्छे से बेस नहीं हुआ है, या मैं अगर थोड़ा सा बेस कर भी रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अरे ओवर हो गया बहुत ज़्यादा. छोटे छोटे बेबी हेयर. बट फिर बाय द टाइम जब माई ग्रूमिंग के रिव्यू हो गए, माई इंस्ट्रक्टर सेड कि अब बेस इज़ वेरी लो, मतलब बहुत कम बेस है, इतना मुझे तो बेस दिख भी नहीं रहा. एंड सच में सच बताऊँ मैंने ज़्यादा बेस किया भी नहीं था. मैंने रिटर्न बैक होम मैंने आवाज़ आई कि यार तो सही बेस तो वैसे मैंने ज़्यादा किया भी नहीं था, बट इससे ज़्यादा क्या ही करूँगी. मुझे ये लगता था कि इससे ज़्यादा क्या ही बेस को, इससे ज़्यादा तो मतलब वो हो गया ना कि 1 किलो मेकअप लगा रखा है. बट देन आई केम होम अगले दिन और समथिंग, इट वॉज छुट्टी का दिन था, सैटरडे संडे इट वॉज देयर. तो आई जस्ट ट्राइड ऐसे, मतलब कि एक साइड पे आई जस्ट ट्राइड थोड़ा सा कि बेस करने के बाद ज़्यादा केकी तो नहीं लग रहा या बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं लग रहा. एंड आई वॉज हैप्पी, लेकिन नहीं अच्छा तो लग रहा है, करूँगी इसको अगले दिन. देन उसके बाद आफ्टर ग्रूमिंग आई वेंट टू ये वेंट इंस्टीट्यूट by doing all like every base, जो मैं like proper foundation, proper concealer, like proper अच्छा base. So fix up. So everyone was like, okay today your base is looking nice. That actually motivated me, like कि कर लेती हूँ यार मैं सही, ऐसा नहीं है. You should also give it a shot. थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि सूख जाए. Apart from that, this is my छोटा सा रूम. लिविंग इन 1 RK विद अ फ्लैटमेट ऑफ माइन, जैसे मैंने बोला कि वो है नहीं, शी वेंट टू अ होम टाउन क्योंकि सैटरडे संडे था एंड वी हैव क्लियर द सिक्योरिटी पार्ट. सो शी वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गो होम, लाइक गो बाय. सो शी वेंट एंड या, सो दैट्स माय बैग.
दैट्स माई कोट ब्लेजर जो मैं यूजुअली पहनती हूँ. एंड या ही इज़ आर रेफ्रिजरेटर जो कि हमें फ्लैट में ही मिला है. इट्स नॉट लाइक कि हमने ख़रीदा है अलग से. तो हमारा फर्निश्ड ही था रूम. अब आप बस किचन के अलावा एवरीथिंग वॉज देयर. बाकी सामान तो अपने ही लाना है ऑफकोर्स. चद्दर वद्दर सब मेरी है, ठीक है, मतलब बिछाने वाली नहीं, ओढ़ने वाली. ओके तो ये भी हो गया है. नाउ वील मूव फॉरवर्ड विथ आई मेकअप. सी इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग एविएशन तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ कुछ न्यू मत खरीद लेना. आई एम टॉकिंग अबाउट दी आई लाइक आई शेडो, लिपस्टिक और ब्लश एंड तो मतलब ये चीज़ें. फॉर बेस यू कैन बाय कि अपने मन से फाउंडेशन ले लो, कंसीलर, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्किन कॉम्प्लेक्शन हिसाब से क्या जाएगा, तुम पे क्या सूट करेगा फॉर द बेस. बट फॉर द मेकअप पार्ट, प्रॉपर मेकअप पार्ट लाइक ब्लश, लिपस्टिक, आई शेडो, लाइनर एंड एवरीथिंग, प्लीज़ डोंट बाय, डू नॉट इन्वेस्ट. मैंने भी नहीं लिया था. आई हैव ऑल्सो सीन फ्यू वीडियोज़ ज्वाइन करने से पहले कि क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए मुझे. एंड आई हैव जस्ट फाउंड अ शॉर्ट यूट्यूब पे विच सेज कि तो ग्रूमिंग करवाते हैं वो, तो दे विल सजेस्ट यू. नाम लिखिए, ठीक है. बट बीइंग अ न्यू गर्ल आई वाज लाइक कि यार मुझे ग्रूमिंग सिखाते हो ना, प्रोडक्ट थोड़ी बोलेंगे. बट फिर देन आई सॉ वन मोर वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, डू नॉट बाय एनीथिंग, क्योंकि कंपनीज आपको सजेस्ट करती हैं. क्योंकि सी दे हैव सर्टन लुक्स. अब ऐसा नहीं कि आपको बस मेकअप करके आना है तो आप कुछ भी करके आ जाओगे, तो दैट विल नॉट वर्क. दे हैव सर्टन लुक्स की हमारे क्रू इस टाइप का ही आई मेकअप करते हैं, हमारे क्रू इस टाइप का पीची ब्लश लगाते हैं, या जो भी लाइक वट एवर. या ये है हमारा लाइक इफ़ यू हैव सीन एमिरेट्स तो उनका मेजर है रेड लिपस्टिक. एंड इफ़ यू हैव सीन एतिहाद की क्रूज, उनका थोड़ा सा पिंक एंड पर्पलिश टोन में रहता है लिपस्टिक. सो सेम गोज विथ डिफरेंट एयरलाइन, डिफरेंट डोमेस्टिक एयरलाइंस इन इंडिया की उनका अपना अपना कलर रहता है, उनका अपना अपना कलर रहता है. हमका उनका मिक्स हो गया मेरा, सॉरी. तो उनका अपना अपना कलर रहता है. एंड थोड़ा प्रेजेंटेशन भी सेम होना चाहिए ना. अब आई एम लुकिंग बड़ी अजीब सी, मतलब सिंपल सा बेस मेकअप एंड एवरीथिंग. ऑन द अदर हैंड द अदर क्रू शी इज़ लुकिंग वेरी पॉलिश और प्रोफेशनल, तो दैट विल नॉट वर्क. तो दे विल सजेस्ट यू कि जो लग रहे हो सब लोग एक जैसे लगो. फेस तो ऑफकोर्स डिफरेंट ही है सबका. तो दैट्स द थिंग. यार मैं बोर तो नहीं कर रही. एक्चुअली मैं हो भी सकता है कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बोल रही हूँ. एंड मेकअप एक्चुअली टेक्स अ लॉट मोर टाइम फॉर मी, क्योंकि आई एम वेरी न्यू. इसके अलावा आई कैन ऑल्सो आंसर फ्यू मोर क्वेश्चंस. वर दे रियली स्ट्रिक्ट अबाउट स्कार्स? बता चुकी हूँ, हाँ छोड़ दो. पर हाँ, दे आर स्ट्रिक्ट. ओके. What's the dress code for interview? Skirt or pant? क्योंकि it depends upon airline to airline. I have given Indigos as well. I have given Akasas as well. तो I found out कि मैं कहीं भी कुछ भी नहीं पहन सकती. अगर मैं इंडिगो के लिए गई हूँ एंड उनके यूनिफॉर्म में स्कर्ट है, सो मुझे स्कर्ट ही पहन के जाना पड़ेगा. और वेराज अकासा अगर उनके में पैंट है तो आई कैन डू बोथ. मैं स्कर्ट पहन के जाऊँ, मैं पैंट पहन के जाऊँ, दैट डजंट रियली मैटर. सो यस. बाय द वे, मैं जो मेकअप लुक कर रही हूँ वो मैं रिवील तो नहीं करूँगी नेम. तो मैं क्यों करूँ, तुम ज्वाइन करोगे, तुम खुद जान जाना. आई जस्ट शो यू द मेकअप, ठीक है. और फॉर दिस ठीक है मेरा सामान. फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस काजल फ्रॉम प्रोजेक्ट ईव, ऑल डे स्टे, पता नहीं. तो आई जस्ट पुट लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल, नॉट लिटिल, ठीक है. अभी फैला दूंगी मैं इसे. क्यूट इट्स लुकिंग राइट. एंड आई डोंट हैव दैट ब्रश जिससे ये फैलाते हैं, बट आई हैव सीन अ वेरी नाइस हैक जिससे इफ यू हैविंग दिस पेंसिल लाइनर, लिप लाइनर वाला, तो इसका जो वॉन्ड रहता है ना, आगे से कर्व रहता है. मैंने देखा है कि ये हैक है, ये इसीलिए है ताकि आप स्मज कर सको अपनी लिपस्टिक लिप्स पे. या तो मैं आइज पे फिक्स कर देती हूँ, शो यू.
बहुत हल्के हाथों से करना, ये नहीं कि तुम रगड़ दिया। सी आई टेल यू, और अच्छा लग रहा है, खराब भी नहीं लग रहा है कि हाय हाय ये क्या कर लिया, ऐसा भी नहीं है। नाइस नो। अपार्ट फ्रॉम दैट ना, तुम लोग प्लीज़ थोड़ा ये वीडियो थोड़ा फास्ट करके देखना, क्योंकि मैं खुद भी नहीं देखती इतना लंबा वीडियो वैसे तो, मैं थोड़ा सा भगा देती हूँ क्योंकि मैं बकवास ही कर रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू द मेकअप पार्ट कि हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट। हर एयरलाइन का ना अपना अपना मेकअप होता है, तो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली बेस कि जब तुम एयरलाइन ज्वाइन करोगे तुम्हें तभी करना है। इफ़ यू आर ओके विद डूइंग दिस मेकअप, अगर तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो या तुम्हें पार्टी लुक चाहिए, then also it will work. I found this one particular makeup or look, you can say, party vibes. तो अगर मैं बाहर भी गई हूँ ना, then also I will do it, cause why not। अब मैं थोड़ी उंगली करूँ। सी इस वाले से बस फैला था, ठीक है। नाउ इट इज़ गोइंग, इट इज़ गिविंग स्मोकिंग। मुझे लग रहा है मुझे ना कुछ टाइम बढ़ाना पड़ जाएगा इस पर ना यार, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही वो लाइट के साथ खेल रही हूँ। फॉर क्वेश्चंस आई थिंक ना मुझे अलग ही बनाना पड़ेगा वीडियो, बट आई हैव ऑल्सो आंसर दैट की स्कर्ट या पैंट सी, इफ़ यू आर गोइंग विथ ऐसी एयरलाइन जो पैंट्स नो गिर देती है लाइक अकासा, तो यू कैन वेयर पैंट्स एज वेल। कुछ चीज़ नथिंग लाइक कि क्या पहनूँ वैसा वाला सीन नहीं है। ओके, एंड फॉर दिस ना आई एम डूइंग ब्राउन। मैंने पहले ब्लैक कर लिया था एंड नाउ आई एम गोइंग विथ ब्राउन आई शेडो। आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम एल्फ। तो देखो, क्योंकि मुझे सजेस्ट किया गया इसीलिए, बट आई एम नॉट सेइंग कि लोग ये सब लीक मत करना, पहले बता रही हूँ। और अपने मन से भी मत ले लेना कुछ, क्योंकि दे आर हैविंग डिफरेंट लुक्स, और ठीक है, तो तुम पहले देख लेना कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है। ये नहीं कि पहले ले लिया और मेकअप कर रहे हो तो सूट ही नहीं कर रहा शक्ल पे। मेरे पे ये सूट करता है तो मैं यही करती हूँ। ओ तो गलत कर दिया ओए। ओह शिट, ओह शिट। ठीक है, वो ना आशी बहुत ज़्यादा ऊपर लगा दी था। बट अच्छा, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ना, सो फार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है यार। ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था, प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा जा रहा है आपका। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। पीपल आर वेरी नाइस, एंड यूजुअली एविएशन और हॉस्पिटैलिटी में यू विल फाइंड वेरी नाइस पीपल, एक्चुअली वेरी नाइस पीपल। मेरा मेकअप तो ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है, प्लीज़ डोंट से, क्योंकि मैं अभी भी स्टार्ट किया है मैंने भी, ठीक है ना। तो ऐसा मत कहना तुम कि ये क्या कर दिया घटिया सा, अच्छी कितने ख़राब लग रहे। ऐसे कोई नहीं बोलेगा मुझे, प्लीज़। दिख भी रहा है तुमको, ब्राउन, इट्स ब्लैक से ब्राउन, ओके, ब्लैक और फिर धीरे धीरे कि ब्राउन। तो इट्स दैट आई एम नॉट वेरी गुड विद दिस वन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से ये वाला थोड़ा सा पर्टिकुलरली सीखना होगा। सो मैं यूजुअली ऐसे छुट्टी में सोचती हूँ कि मैं लेकर बैठ जाऊँ या मैं कुछ तो ट्राई करूँ कि हाउ कैन यू नो आई कैन इन्हांस द लुक। सो आई डू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट डू इन्वेस्ट इन ब्रश, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तुम हाथ से नहीं कर सकते। मैं करती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम हर चीज़ नहीं कर सकते। मैं ज्वाइन करने से पहले तक मेरे पास कोई ब्रश नहीं था, कोई भी ब्रश नहीं था सच में। तो मैंने फिर यहाँ के ब्लिंकेट कर लिया। एक महंगा ब्रश नहीं लेना मुझे, क्योंकि बट आई कैन इन्वेस्ट इन ब्रश, चलो तो मैंने ख़रीद लिया, ब्लिंकेट कर लिया मैंने, एंड दी वेरी नाइस डिसीजन। क्योंकि सच में सिर्फ ब्रश का काम है, बस ब्रशिंग करना, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो महंगा सस्ता मत देखो,
तुम्हें चाहिए तुम ले लो यार, थोड़ा बहुत तो काम आएगा ना, जब पैसे आएंगे तो खुद इन्वेस्ट कर लेना, फिर से थोड़ा और महंगा ले लेना। एंड आई विल ऑल्सो डू दिस। मुझे काम चलाना है, मुझे काम करना है, तो जब तक मेरे हाथ में सैलरी नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे अच्छे से, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ यार। दिस इज़ द थिंग फॉर मी पर्टिकुलरली। इफ़ यू हैव मनी, गुड फॉर यू, गो फॉर इट। क्या पैसे हैं तो करो, वाई नॉट। बट अगर पैसे नहीं है तो डोंट गो फॉर कि अरे यार सबके पास है मेरे पास नहीं है। दैट डजेंट मैटर। तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम अच्छे से आ रहे हो, बस खुश रहो उसमें। अब क्योंकि नीचे कुछ गिर गया होगा तो आई एम अगेन यूजिंग दिस वाला ब्रश, एंड मैं इससे बस ऐसे कर रही हूँ ताकि कुछ भी होगा तो ऐसे उड़ जाएगा। ऐसे पता नहीं कैसे ही उठ गए तो पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, एक साइड का अच्छा होता है, एक साइड का बड़ा ख़राब हो जाता है। नाम स्केप्टिकल, किसी ने मेरे इंस्टीट्यूट में वीडियो देख के मेरी ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर को दे दिया। मेरी ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर तो बहुत नाराज़ हो जाएगी, नाराज़ और निराश दोनों, क्योंकि छी ये क्या कर रखा है इस लड़की ने, इसे फिर से ग्रूमिंग देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, ये सब तो हो गया था। बड़ी श्योर से नीचे नहीं लगाना है। इवेंचुअली ना ये करते हुए मुंह खुल जाता है। कितनी बकवास कर रही हूँ मैं। इंटरव्यूज़ कितने दिन तक कंडक्ट हुए थे? 2 दिन इंटरव्यूज़ हुए थे यार, बट मेरा एक ही दिन में हो गया था। आई यूजुअली जो जिस दिन बुलाया गया है उन्हें इंटरव्यू के लिए उसी दिन हो जाता है, वो अगले दिन वापस नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इंसान बहुत सारी जगहों से आ रहा है इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम बुला लो किसी को फिर अगले दिन तुम फिर से बुला रहे हो कि बेटा आज तो ग्रुप डिस्कशन हो गया है, कल पीआई के लिए आ जाना। दिस इज़ नॉट गोना हैपन। जिस दिन जा रहे हो उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। बस अपना इंटरव्यू का डेट ध्यान से देख कर जाना। ब्लश, दिस इज़ नॉट ब्लश, दिस इज़ लिपस्टिक। अभी मैं बस तुम्हें दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ब्लश नहीं ली सॉरी, क्योंकि मैंने अभी ब्लश नहीं लिया है, तो आई विल इन्वेस्ट इन ब्लश एज वेल, क्योंकि इट्स रिकमेंडेड। एंड बाय द टर्म रिकमेंडेड तुम समझ लो कि तुम्हें लेना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें वो लुक क्रिएट करना है। ज़्यादा देर शाने मत बनना कि नहीं मैं तो नहीं लूँगी, मैं तो चला लूँगी ऐसे ही, वो नहीं करना है। बाय द ट्रेनिंग मैं चला रही हूँ, बट किसी दिन अगर चांस से चेक हो गया ना तो देयर विल बी योर SOPs, एंड वो तो तुम बोल देंगे तुम कि अपना मेकअप किट खोलो भाई, तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। सो यू शुड बी। नाक वैसे नहीं लगाना होता है, मैं पापा लगा देती हूँ हमेशा। अब मेरा ब्लश कम लग रहा है तो लगाओ और मेकअप लगाओ। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा ही मैं ब्लश लगा के चली गई थी। मेरी रूममेट ने भी मुझे कहा बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लश है, बट देन आई वॉज हैविंग वन मोर बैचमेट ऑफ माइंड। मैं उससे पूछा, मैं कहा ज़्यादा ब्लश लग रहा है क्या? एंड शी सच अ स्वीट हार्ट, शी से कि नहीं हट जाएगा वो तो। मैं उसे कि हाँ हट जाएगा छिड़ा। तो लेकिन वो पूरे दिन था, एंड ऐसा नहीं कि मुझे ख़राब लग रहा था। द थिंग इज़ कि एक साइड में ब्लश कम था एंड एक साइड ज़्यादा हो गया था। बट यूजुअली मैं मेकअप थोड़ा कम लगा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो हट जाएगा, वो एंड ऑफ द डे तक चला जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा मेकअप बार बार चला जाए, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा लगा लिया था उसे, तेज़ बन गया और वो पूरे दिन ही रह गया। वो एकदम बंदर जैसी लग रही थी मेरी एक गाल, बट मुझे उतना ख़राब नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा था। चलो नाउ माई वेरी फेवरेट पार्ट, दैट इज़ लिपस्टिक, क्योंकि ये काम मैं पहले करती हूँ। नाउ दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड, ये नॉर्मल सी लिपस्टिक है। माई मदर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से फॉरएवर। तो ये बस उसकी लिपस्टिक है, विच आई रियली फाइंड गुड। आई कैन सजेस्ट यू, बट फिर तुम बोलोगे कि मैं बेच रही हूँ, तो मैं नहीं बेच रही हूँ ऐसा कुछ भी, ठीक है। और कोई भी ऐसे गाली वाली मत देना कंपनी को। आई नो बहुत लोगों को कंपनी नहीं पसंद, इवन नाउ माई मदर इज़ ऑल्सो लाइक क्या बेकार कंपनी तो आई कैन रिलेट, एंड ठीक है। एंड आई वॉज ऑल्सो इन कॉलेज, मैं कॉलेज के भी 2-3 लोग कर रहे थे, तो हम फ्रॉड ही समझते कि स्कैम है भाई, बहुत पैसे लूटते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इवेंचुअली यू विल गेट द प्रोडक्ट्स। सो आई एम यूजिंग द लिप लाइनर, क्योंकि वाई नॉट। सी लिपस्टिक लगा के ना सब कोई फिनिशिंग नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने मम्मी को हमेशा से देखा है
एंड पहले तो था भी, इट वॉज इन स्टाइल कि एकदम डार्क कलर की लिप लाइनर एंड उस पर फिर एक लिपस्टिक, तो लिप लाइनर अलग से पता चलता है कि किसी ने ड्राइंग कर रखी है, बट उतना नहीं करना है हमें. सो लिप लाइनर विल हेल्प यू डिफाइनिंग द लिप्स का शेप इवेंचुअली. एंड इसको मुझे थोड़ा सा छिलना पड़ेगा बट मैं इसे छिलूँगी तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ख़त्म हो गई है एंड आई हैव टू बाय अ न्यू. मैं चुप हो गई होती है, कितना अच्छा लग रहा था ना मुझे. ऐसे मेरे बैचमेट्स के 2 लड़के हैं, वो कहते हैं कि तुम ना चुप रहा करो, तुम बहुत अच्छी लगती. मिलूंगी मैं मंडे को तुमसे, बताऊंगी तुम्हें अच्छे से मैं. मोर थिंग, लिप लाइनर ना अपने लिप के कलर का लेना. मेरा थोड़ा मेकअप का स्पेशल लिपस्टिक का लेके थोड़ा सा अलग है. आई वांट कि थोड़ा सा रेडियंट में रहे, डार्क से लाइट, बट यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि एयरलाइन के लिए इट विल लुक गुड. क्योंकि पर अभी मैं इसको पूरा लिपस्टिक से कोट कर लूँगी तो पता ही नहीं चलेगा. और मेरी लिपस्टिक भी ऐसी है, मेरा स्किन कॉम्बिनेशन भी ऐसा है. एंड आई यूज़ नायका का मद्रास कापे कि वो मेरे स्किन में ही घुस जाती है लिपस्टिक. ना आई विल शो यू. देखो मैं लिपस्टिक वेस्ट नहीं करूँगी कि अलग से ऊपर लगाऊँ, ना ना ना. आई एम डन विद माई मेकअप. ऐसे ही चाहती हूँ मैं रोज़ इंस्टीट्यूट, इसी तरीके से रेडी होके एज पर आर इंस्ट्रक्शंस. तो या अपार्ट फ्रॉम दैट बाल के लिए दे सम अलग प्रोसीजर, डिपेंड्स अपॉन योर हेयर लाइन. बाय द वे फॉर द हेयर्स, मेरे बाल पहले ऐसे थे नहीं एक्चुअली. मेरे बाल बड़े ऐसे फ्रीजी से थे और ऐसे मतलब झाड़ियों जैसे थे. बट माई रूममेट सजेस्टेड एंड शी इज़ माई बैचमेट एज वेल, तो शी सजेस्टेड कि गो फॉर नैनोप्लास्टिया. सो आई गॉट नैनोप्लास्टिया डन एंड अब मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली स्ट्रेटेंड हैं थोड़े. एंड इट्स वेरी ईजी टू मैनेज. I'll go and get my haircut done tomorrow. So yeah, I'll be sharing a new look. मतलब बालों के लिए eventually बाल थोड़े और छोटे हो जाएंगे and I'll be getting a new haircut done. This is by the way blunt. So I'm thinking of getting a graduated bob because that will look good. क्योंकि last year मेरे वही थे बाल. So yeah, this was the makeup and just let me know कि कैसा लग रहा है. सी फॉर द आई शेडो पार्ट आई नो कि ब्लेंड का थोड़ा सा इशू है मुझे, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी मच न्यू यार. एंड कभी कभी मैं ये भी कर लेती हूँ. ओह अभी भी वैसे ख़त्म ही, वैसे याद है मुझे. मस्कारा तो रह ही गया गाइज. आई लाइक दिस एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड, बट आई रियली लाइक दिस. कि इसमें इन्होंने ना ये पता नहीं किस लिए, बट मैं तो आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ. आई गेस आईब्रो के लिए ही है. एंड दिस वन ऊपर वाला इज़ फॉर आई गेस आईब्रो या मस्कारा के लिए, मतलब आई लैशेस के लिए. बढ़िया. अब हम लगाएंगे मस्कारा एंड देन ओनली हमारा मेकअप ख़त्म होगा. तो क्या लगाया नहीं था. अंधी हो गई थी तो सेकंड के लिए. See, my eyes changed. सिर्फ मस्कारा आया से. मस्कारा इज नाइस यार. मैं भूल जाती हूँ यूजुअली मस्कारा लगाना अगर मेरे सामने नहीं है. एक्चुअली मैंने मेकअप बॉक्स भी नीचे रखा हुआ है, तो यूजुअली मेकअप बॉक्स मेरे सामने रहता है जब हम सुबह मेकअप कर रहे होते हैं. तो एंड हाँ, वन मोर थिंग, always use 2 coatings of mascara ताकि अपना मस्कारा दिखे, your eyelashes they are visible properly और काफ़ी अच्छे enhanced लगे. एंड उससे मस्कारा ज़्यादा टाइम तक रहता भी है. इट्स नाइस एक्चुअली. और 2 कोटिंग में क्या चला जाएगा तुम्हारा. लगाओ चुपचाप अच्छे से. अब हम वापस लगाएंगे मेकअप फिक्सर.
इतना नहीं करना है पास से। या नाउ आई एम प्रॉपरली डन। मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करती हूँ क्योंकि उधर से अच्छी लाइटिंग है तो वहाँ से ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं बेड पे बैठ गई हूँ कि उसमें नीचे थी क्योंकि वही मिरर रहता है। दैन यूजुअली हम खड़े होकर मेकअप करते हैं तो इट्स फाइन। दिस इज अ मेकअप माय दी मस्कारा थिंग जो कि भी गीला है, दी ब्लश पार्ट एंड मेरा फेस हल्का सा चेंज हो गया आफ्टर मेकअप जो कि इवेंचुअली हो जाएगा। सी मेकअप करने का मतलब ये नहीं कि अब तुम बिल्कुल ना शक्ल चेंज कर लो टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स कि तुम इन्हांस कर लो थोड़े फीचर्स और थोड़े शार्प और पॉलिश लुक टोमेटो। मैं बैचलर लड़की हूँ, डोंट एक्सपेक्ट मेरे पास बहुत सुंदर बॉटल होगी। प्लास्टिक बॉटल में पी रही हूँ। आई हैव अ बॉटल बाय द वे जो मैं इंस्टीट्यूट लेके जाती हूँ। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वीडियो था ये, थोड़ा सा प्रोडक्टिव कर लेते हैं। फॉर दिस देखती हूँ मैं क्या क्या जवाब दे सकती हूँ टू यू गाइस। वैसे अर्लियर आई वॉज वेरी मच अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट देन आई पोस्टेड वन वीडियो ऑन माई ऑन यूट्यूब, ऑफ कोर्स यू कैन सी। आई थॉट कि कैसे स्टार्ट करूँ, सो आई जस्ट मेड वन वीडियो। Okay, there is one comment. Hello sis, I was selected in one interview in Akasa Air, but I'm a fresher. I don't know what to do. Can you please help me to achieve? Okay, so what I can evaluate कि आपको इनविटेशन आ चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसको इनविटेशन आता है, बिकॉज ये भी बहुत बड़ी बात है। बीइंग अ फ्रेशर मेरे लिए भी इनविटेशन आना वॉज अ वेरी बिग थिंग। मैंने डाल दिया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्लीज़ मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए एंड फाइनली डिड एंड आई गॉट द इनविटेशन। सबसे पहले तो आई बिलीव इसने मेरा वीडियो ही देखा है कि मेरे इंटरव्यू के क्या प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। सबसे पहले अगर तुम मुझे मेरी पहली वीडियो से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो देखो जिसमें मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू प्रेप के लिए वीडियो बना रखी है। आई विल ट्राई टू लिंक दैट वीडियो में डिस्क्रिप्शन, और आई डोंट नो कि कैसे करते हैं वो आई वाला पार्ट, बट डिस्क्रिप्शन में आई विल डेफिनेटली पुट इट। यू जस्ट गो फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल भी पैनिक मत करो और अपना ध्यान रखो यार। थोड़ा वेट पे चेक करो, एवरीडे चेक करो अपना वेट वगैरह। कुछ जीडी टॉपिक्स चेक करो, यूजुअली जो बाकी एयरलाइंस हैं पूछे जा चुके हैं एंड सी वो बहुत कॉमन टॉपिक्स रहते हैं। यूजुअली वो यही सब चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, और आप कितनी क्विकली आंसर कर रहे हो, कितना आपका आपका एक्सपेंशन, कितना आप आइडिया सोच सकते हो। एंड प्लीज़ ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करो, उन्हें देखो। कैबिन क्रू क्यों बनना है, ऑफकोर्स अगर बन रहे हो तो कोई तो रीज़न होगा, बस उसे पॉलिश डाउन कर दो, ठीक है। एवरीवन हैज़ अ मोटिव गर्ल, प्लीज़। ओके, और हम देखते हैं। हेलो मैम, व्हाट्स योर एज, विच लोकेशन डिड यू अप्लाई फॉर? ओके, आई एम 21 और द लोकेशन इज़ नॉट समथिंग अभी जो मुझे मिल जाएगा। वो ट्रेनिंग के लिए खुद बुलाते हैं। आप जिस भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको खुद अपनी ट्रेनिंग अकेडमी बुलाएंगे। यू हैव टू गो, जितने भी मंथ्स की ट्रेनिंग होगी यू नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर। उसके बाद दे विल सी कि हमें कौन सी लोकेशन पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर द क्रू, तो आपको इवेंचुअली वहीं भेज देंगे। फॉर अकासा आई कैन टेल यू कि इनके 3 बेस लोकेशंस हैं। सो इवेंचुअली आई विल गेट एनी वन जैसी इनकी रिक्वायरमेंट होगी एंड आई एम अप फॉर दैट। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये लोकेशन क्यों मिल गया, मुझे काम करना है। आई ऑपरेट फ्रॉम एनी वे। देयर इज़ वन मोर कि मेडिकल्स वगैरह का क्या प्रोसेस है। तो फॉर द मेडिकल्स दे विल टेल यू, उनके अपने डॉक्टर्स होते हैं
दे वांट कि आप उन स्पेसिफिक डॉक्टर्स या उन स्पेसिफिक लैब्स में ही जाके अपना चेकअप कराओ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं एंड पीपल डोंट वांट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आई मेक अ separate short video, like YouTube shorts, to clear all your doubts and everything. And yeah, thank you so much for being on this video and looking for this makeup and listening to my chit chats. I'll for sure make few videos on this, and to stay updated you can follow me on IG, क्योंकि उसमें आई यूजुअली मैं कुछ ज़्यादा डालती नहीं हूँ। आई यूज़ टू पुट स्टोरीज़ कि व्हाट वी आर डूइंग, मेरे बैच के बारे में, दी मोमेंट्स विच वी शेयर। सो या, एंड आई एम एन्जॉइंग सो फार। The place is very nice. Aviation, hospitality, these places are very good. People are very much cooperative and everything. And to all the people who have applied, all the very best. To all the people who have cleared, waiting to see you in ALA. If you are joining a caster, and if you're joining any other organization, I'm so much happy and I'm waiting to see you at the airport. Yeah, I just want to meet you guys. So yeah, follow me on IG. Tell me if you have any queries down in the comment section, and I'm up for answering every question. Thank you. Bye bye.